Greetings everyone. So today we will discuss about aryl halides. So aryl halides are aromatic compounds in which halogen atom is directly attached to the benzene ring. So there are two type of aryl halides, nuclear substituted and side chain substituted. Nuclear substituted means like this is benzene ring and direct एक hydrogen substitute करके substituent लगाया हुआ है. So जो सब्सटीट्यूएंट लगा है दैट इज क्लोरीन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ लगा है. दिस इज न्यूक्लियर सब्सटीट्यूटेड एराइल हेलाइड. साइड चेन सब्सटीट्यूटेड एराइल हेलाइड मींस लाइक ये पहले CH3 था, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा था, दिस वाज टॉल्विन. टॉल्विन का एक हाइड्रोजन हमने हटा के क्लोरीन लगा दिया. सो साइड चेन डायरेक्ट बेंजीन पे एरोमेटिक कंपाउंड पे सब्सटीट्यूशन नहीं हुई है, साइड चेन पे सब्सटीट्यूशन हुई है. सो दिस इज साइड चेन सब्सटीट्यूटेड एराइल हेलाइड. So two type of aryl halides, nuclear substituted and side chain substituted. Next is methods of formation. First method of formation is direct halogenation. So we have taken this benzene ring, directly हमने chlorine add किया in the presence of FeCl3. FeCl3 is Lewis acid and it is electron deficient in nature. It also acts as halogen carrier which carries this Cl positive chloronium ion to this benzene ring and the reaction goes by electrophilic substitution reaction. This has already been discussed in semester 1. So this chlorine atom will be substituted to benzene ring and we will get this chlorobenzene. अगर फिर भी chlorine excess में है तो we will get a mixture of orthochlorobenzene and parachlorobenzene, para-dichlorobenzene and ortho-dichlorobenzene. यहाँ पे जो क्लोरीन ग्रुप ऑलरेडी लगा होता है उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है. अगर देयर इज इनकमिंग ग्रुप, सो दिस group which is already present, it directs the incoming group to ortho, meta or para position. So this is ortho para directing, so we will get a mixture of ortho and para products. Like we have taken this toluene. Toluene में हमने bromination की in the presence of FeBr3 which is Lewis acid. So CH3 is ortho para directing. This bromine will either go at ortho position or it will go at para position and we will get the mixture of ortho para bromotoluenes. और अगर हम इसी की ब्रोमिनेशन करें इन द एब्सेंस ऑफ ल्यूइस एसिड, FeBr3 की एब्सेंस में सीधा हमने ब्रोमीन ऐड किया है तो इसकी साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन सब्सटीट्यूशन होगी एंड वी विल गेट बेंजीन रिंग के ऊपर जो CH3 लगा है उसका एक हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट होगी ब्रोमीन, साइड चेन सब्सटीट्यूशन होगी एंड वी विल गेट बेंजाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोफिनाइल मिथेन. In the absence of Lewis acid, side chain substitution. In the presence of Lewis acid, direct nuclear substitution. Second method of formation is Sandmeyer's reaction. So Sandmeyer reaction में we use benzene diazonium chloride salts which are prepared from amines. तो benzene diazonium chloride लिया, इसमें हमने CuCl copper chloride ऐड किया in the presence of HCl. तो यहाँ पे हमें क्लोरीन डायरेक्ट न्यूक्लियर सब्सटीट्यूशन होगी, क्लोरोबेंजीन मिलेगा. Copper bromide in the presence of HBr, we will get bromobenzene, and if we add Ki in the direct Ki, so we will get iodobenzene. But iodination is not very useful because Hi which is used here, it is a good reducing agent and it reduces the aryl halide जो बनेगा iodobenzene, it reduces aryl halide back to arene. सो टू प्रिवेंट द रिवर्स रिएक्शन हम हमेशा आयोडिनेशन में कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अ ड्रॉप ऑफ H2SO4 या HNO3 कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें ज़रूर ऐड करते हैं. थर्ड इज गेटरमैन रिएक्शन. सो गेटरमैन रिएक्शन में हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, साथ में हमने यूज़ किया कॉपर का पाउडर. सैंडमेयर रिएक्शन में हम कॉपर का सॉल्ट यूज़ करते हैं, गेटरमैन में कॉपर पाउडर एंड वी विल गेट ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl. सो next is chemical reaction. Aryl halides show three type of chemical reaction. First is nucleophilic substitution, second is electrophilic substitution, and third type of category is miscellaneous reaction. So first we will start with nucleophilic substitution reactions. So nucleophilic substitution reaction, they are less reactive as compared to alkyl halides. As compared to alkyl halides, aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. For example, let us discuss this example. We have taken this benzene के ऊपर NH2 लगा है. This is aniline. It reacts with HCl. Sorry, we have taken this chlorobenzene. Chlorobenzene की हमने रिएक्शन करवाई है एमोनिया के साथ. So we will get this aniline एंड HCl. यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया है. किसने किसको रिप्लेस किया है? NH3 से हमें मिलेगा विच न्यूक्लियोफाइल? NH2 नेगेटिव. दिस एमाइड आयन विल रिप्लेस दिस क्लोराइड आयन एंड वी विल गेट दिस एनिलीन. Some more reactions of nucleophilic substitution are chlorobenzene, it reacts with NaOH, sodium hydroxide, and we will get phenol.
So here OH negative has replaced Cl negative. Third reaction is with reaction with copper cyanide. Here Cn negative will replace Cl negative and we will get benzonitrile. So these are some of the nucleophilic reactions shown by aryl halides. But aryl halides are less reactive as compared to alkyl halides towards nucleophilic substitution reaction. Now the reason for this low reactivity is, we can explain it on the basis of resonance. Like this is our aryl halide, that is chlorobenzene. यहाँ पे जो क्लोरीन एटम लगा है, it has 3 lone pair of electrons, so it will show resonance because aromatic ring also has pi electrons. तो ये रिंग, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर मूव करेंगे और रिंग के इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे मूव करेंगे and CCl single bond will be converted to double bond. So this is the electron movement. This negative charge will move on the complete benzene ring because of these pi electrons present, conjugated pi bond present. तो ये electrons इधर जाएंगे and ये electron इस carbon पे आएंगे, negative charge, we will get this structure. This negative charge will move on this side and this pi electrons will come on this carbon and we will get this structure. So we can see there are 3 resonating structures. इसका resonance hybrid अगर हम बनाएंगे तो हम देखेंगे पूरा जो है नेगेटिव चार्ज, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, पूरा जो नेगेटिव चार्ज है, negative charge is delocalized on this complete benzene ring. So because of resonance we can say that C single bond, carbon chlorine के बीच में जो single bond था, carbon chlorine single bond has been converted to carbon chlorine double bond, and double bond is difficult to break. So because of this double bond character, this bond is difficult to break, so its reactivity towards nucleophilic substitution reaction will decrease, क्योंकि nucleophilic substitution में क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलना है. So this bond, we will break this bond, तभी nucleophilic substitution reaction होगी. और जितनी easily bond break होगा उतनी easy होगी nucleophilic substitution reaction. But ये तो double bond में convert हो गया है, so double bond is difficult to break. So because of resonance न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल डिक्रीज. अब अगर इसको एल्काइल हेलाइड से प्रिपेयर करें तो एल्काइल हेलाइड में तो ऐसी कोई भी रेजोनेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल दिस इज क्लोरोमीथेन. अब इसके इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव करेंगे तो आगे कुछ भी नहीं है. यहाँ पे क्यों रेजोनेंस शो हुई, बिकॉज यहाँ पे कंजुगेटेड पाई सिस्टम प्रेजेंट था, यहाँ पे कंजुगेटेड पाई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है. सो देयर इज नो रेजोनेंस. सो एल्काइल हेलाइड्स का जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट नहीं होता, इट इज सिंगल बॉन्ड. सो इट इज ईजी टू ब्रेक एंड इट्स मोर रिएक्टिव देन aryl halides for nucleophilic substitution reaction. Also we can explain on one more reason that जिस कार्बन में क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है that carbon is sp2 hybridized, जबकि एल्काइल हेलाइड में जिस कार्बन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है that is sp3 hybridized. So sp2 hybridized carbon is more electronegative, smaller in size and short and strong. तो ये वाला जो बॉन्ड होगा ये शॉर्ट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा. इस बॉन्ड को ब्रेक करना विल बी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू एल्काइल हेलाइड का सिंगल बॉन्ड विच विल बी लॉन्गर एंड वीकर. So aryl halides, on the basis of type of hybridization also we can say that aryl halides are less reactive than alkyl halides toward nucleophilic substitution reaction. Also we can say because this carbon is sp2 hybridized, so sp2 hybridized carbon जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा. So because of this carbon will release less electrons to chlorine atom. तो जब तक ये कार्बन क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, क्लोरीन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन हैज़ टू लीव दिस ग्रुप अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन्स. तो Cl नेगेटिव नहीं निकल पाएगा क्योंकि कार्बन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. सो दैट बॉन्ड विल बी लेस पोलर एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रेक. So that's why aryl halides are less reactive than alkyl halides towards nucleophilic substitution reactions. So next is mechanism of nucleophilic substitution reaction. There are 2 mechanisms. First is bimolecular displacement mechanism. First is bimolecular displacement. It is also called as addition elimination. And second mechanism is benzene. It is also called as elimination addition. उल्टा है. First is addition elimination. Second is elimination addition. First mechanism, that is addition elimination, it is also called as bimolecular displacement. So first mechanism, that is bimolecular displacement or addition elimination, it takes place in 2 steps. First step is formation of carbon ion. तो ये हमारे पास एराइल हेलाइड है. एराइल हेलाइड में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किसी और कार्बन पे अटैक नहीं करेगा. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा. तो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव हियर and we will get this carbon ion. Now this carbon ion will show the resonance
इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे बेंजीन रिंग पे बिकॉज ऑफ कंजुगेटेड पाई सिस्टम प्रेजेंट है, पूरे बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज होंगे एंड वी विल गेट दिस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसमें कि नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर एंड ऑफ दिस बेंजीन रिंग. सेकेंड स्टेप इज रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन. तो ये जो कार्बन आयन बना है यहाँ से X नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा एंड वी विल गेट दिस another nucleophilic substituted aryl halide. Now we know that nucleophilic substitution reaction takes place through the formation of carb anion. So factors which will increase the stability of carbon ion, they will increase the rate of reaction, and factors which will decrease the stability of carbon ion, they will decrease the rate of reaction. So अगर इस कार्बन आयन पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर हम लगा दें तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप. सो दे विल डीस्टेबलाइज द कार्बन आयन एंड दे विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. सो ये हमारे पास एराइल हैलाइड है. अगर हम यहाँ पे कोई ग्रुप्स लगा दें जिनका कि प्लस आई इफेक्ट है जैसे कि मिथाइल, तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, दे विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कार्ब एनायन के थ्रू जानी है. कार्ब एनायन जो है नेगेटिव चार्ज है और ये मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे. सो इट विल लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज एंड इट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी. पर अगर हम इसी एराइल हैलाइड पे कोई ऐसे ग्रुप्स लगाए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो कि माइनस आई इफेक्ट है, जिनका माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स क्या करेंगे, दे विल disperse the negative charge of carbon ion. So dispersal of charge leads to stability. So minus I effect groups present at ortho and para position, they will increase the rate of reaction because they will stabilize the carb anion. Now व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट. ये तो हमने देख लिया कि जो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स हैं वो डिक्रीज करेंगे और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स जो है रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे. और माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स किस पे प्रेजेंट होने चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे. तो प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स तो ऑलरेडी डिक्रीज कर रहे हैं, उन्हें हम डिस्कस नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस द ग्रुप्स विच हैव माइनस आई इफेक्ट एंड विच विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो वी हैव टेकन दिस एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन पे हमने NO2 ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पे. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, न्यूक्लियोफाइल आया, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दिस कार्बन एंड वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर दैट इज 1A. उसके बाद नेगेटिव चार्ज जो है पूरे बेंजीन रिंग पे घूमेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए, दिस कार्बन गेट्स नेगेटिव चार्ज 1B. नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव किया, नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे आया जिस पे NO2 ग्रुप लगा है, दिस इज 1C. अब नेगेटिव चार्ज जो है NO2 ग्रुप के साथ भी रेजोनेंस शो करेगा बिकॉज डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है यहाँ पे. तो ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे मूव करेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा N के साथ और O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दिस इज 1D. सो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर ऑफ इम्पॉर्टेंस जिसमें उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है विच इज अटैच टू NO2 ग्रुप एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज शोइंग रेजोनेंस विद NO2 ग्रुप. नाउ पैरा पोजीशन पे अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा है विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो NO2 ग्रुप को हमने पैरा पोजीशन पे लगाया. सो दिस इज अवर एराइल हैलाइड हैविंग माइनस आई इफेक्ट एट पैरा पोजीशन. तो न्यूक्लियोफाइल आया, इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. फिर से नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दैट कार्बन ऑन विच NO2 इज अटैच्ड, दिस इज 1B. दिस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट. उसके बाद नेगेटिव चार्ज इधर भी मूव कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इधर आ जाएंगे, दिस इज नेक्स्ट स्ट्रक्चर. बट नेगेटिव चार्ज कैन ऑल्सो शो रेजोनेंस विद NO2 ग्रुप, तो यहाँ हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा दैट इज 1C. सो आप देखेंगे ऑर्थो और पैरा के केस पे दो स्ट्रक्चर्स ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि नेगेटिव चार्ज इज ऑन द कार्बन हैविंग NO2 ग्रुप एंड नेगेटिव चार्ज इज शोइंग रेजोनेंस विद द NO2 ग्रुप. दीज आर सर्कल्ड, दीज स्ट्रक्चर्स आई हैव सर्कल्ड इट. थर्ड केस में हमने एराइल हैलाइड लिया, उसमें NO2 ग्रुप लगाया मेटा पोजीशन पे. तो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक किया एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव ऑन दिस साइड. सो दिस इज द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे एंड नेगेटिव चार्ज विल शिफ्ट ऑन दिस साइड. सो यू विल सी दैट इन meta case, in meta position, there is no such structure in which negative charge is on the carbon having NO2 group. जिस कार्बन ने NO2 ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया है, कोई भी मेटा के केस में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है. एंड ऑल्सो देयर इज नो सच स्ट्रक्चर इन केस ऑफ मेटा पोजिशन
जहाँ पे कि नेगेटिव चार्ज जो है NO2 के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है। तो ऑर्थो और पैरा के केस में यू कैन सी 4 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मेटा के केस में 3 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। सो फर्स्ट रीजन दैट इनमें स्ट्रक्चर ज़्यादा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनमें कम है, सो ऑर्थो एंड पैरा इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू मेटा। ऑल्सो ऑर्थो एंड पैरा हैज़ 2 सच स्ट्रक्चर्स इन विच नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच टू कार्बन हैविंग NO2 group, and also because there will be more dispersal of negative charge, also negative charge is showing resonance with the NO2 group. So in case of meta there is no such structure, so we can say that ortho and para position पे अगर minus I effect वाला group लगा है, it will increase the stability of carbon ion, so it will increase the rate of reaction. जबकि अगर meta position पे minus I effect वाला group लगा है, it will decrease the rate of reaction because it has less resonating structures and उसमें stable structures नहीं बन रहे हैं. So next is, this was first mechanism, that is addition elimination. Next mechanism is benzyne mechanism, that is elimination addition. तो यहाँ पे हमने लिया है क्लोरोबेंजीन, पोटेशियम अमाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंड वी विल गेट एनिलीन. So this mechanism proceeds through benzyne. We know benzyne is a chemical species जिसमें 2 ऑर्थोकार्बन के बीच में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड रहता है, and this bond is not a part of this delocalized pi electron system. ये बॉन्ड अलग है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलग है. सो फर्स्ट स्टेप इज एलिमिनेशन. ये हमारा एराइल हैलाइड है कि पोटेशियम अमाइड से NH2 नेगेटिव जनरेट हुआ और यहाँ से H पॉजिटिव ये निकलेगा. H पॉजिटिव निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फिर इधर मूव करेगा और क्लोराइड जो है एलिमिनेट होगा एंड वी विल गेट दिस एडिशनल बॉन्ड. दिस इज बेंजाइन. सेकेंड स्टेप इज एडिशन. एडिशन में क्या होगा, जो ऊपर हमें बेंजाइन मिला है उस पर NH2 नेगेटिव अटैक करेगा. अब देखो बेंजाइन बनने के लिए हमें जहाँ पे क्लोरीन लगा है उसके साथ वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, साथ वाले ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया और हमें बेंजाइन मिला है. तो NH2 नेगेटिव जब एडिशन में अटैक करेगा, सो इट कैन अटैक ऑन आइदर साइड ऑफ द कार्बन जिसमें कि एडिशनल बॉन्ड बना है. इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है. तो इसने इधर किया तो नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर जाएगा एंड वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बन आयन पे अमोनिया अटैक करेगी, यहाँ से H पॉजिटिव इधर मूव करेगा एंड वी विल गेट दिस एनिलीन प्लस एमाइड आयन विच विल बी रीयूज्ड इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट आर द एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ बेंजाइन मैकेनिज्म? फर्स्ट एविडेंस इज that ortho-deuterio-bromobenzene is less reactive than bromobenzene. This is because we can explain on the basis of isotopic effect. अब देखो एलिमिनेशन स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूट रहा था, तो अगर हमने कार्बन हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन हटा के ड्यूटेरियम लगा दिया तो हमने 2 आइसोटॉप्स यूज़ किए. तो जहाँ पे ड्यूटेरियम लगा है उसमें आइसोटॉपिक इफेक्ट आया और उसका जो बॉन्ड है, क्योंकि दिस बॉन्ड इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक एज कम्पेयर टू दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सो CD बॉन्ड विल ब्रेक स्लोली. तो बेंजाइन जो है वो स्लो बनेगा, दैट मीन्स रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन विल स्लो डाउन. सो दिस प्रूव्स दैट बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाती है, क्योंकि ये ड्यूटेरियम या हाइड्रोजन जाएगा तभी बेंजाइन बनेगा. सेकेंड एविडेंस इज दैट कंपाउंड हैविंग 2 ग्रुप्स ऑर्थो टू हेलोजन डू नॉट रिएक्ट. अगर हमारे एराइल हैलाइड में दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है, आप देखो जब बेंजाइन बना था तो ऑर्थो पोजीशन से H पॉजिटिव निकला था, तो अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड है और हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सो बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन नहीं जाएगी, इट विल नॉट रिएक्ट विद KNH2 एंड लिक्विड अमोनिया. थर्ड इज, अगर हमने क्लोरोबेंजीन को लेबल कर दिया और फिर इसकी रिएक्शन हमने बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू की तो हमें बेंजाइन मिला. नाउ बेंजाइन पे दोबारा से जब NH2 नेगेटिव अटैक करेगा तो इट कैन अटैक ऑन आइदर साइड of benzene and we will get the mixture. So presence of this mixture shows that benzene is formed. Mixture तभी बनेगा जब benzene बनेगा. So this was all about aryl halides. Thank you.